Good morning, class. In the last class, we did parts of speech. That is your unit number 8 in your grammar book. So, today we will be doing the remaining part of your unit number 8. So, children, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक पोएम पढ़ी थी जिसमें कि दिया हुआ था कि what are different parts of speech. Look here on your page number 29 in the book. If you want, you can open your book and then see. Okay, so there is an octopus. It has 8 legs. We all know that. See, all the parts of speech are written here. Okay, so these are 8 parts of speech in English language. Okay, these are all called part of speech. Alright, so let's revise one more time and then we shall do the exercise. First part of speech is noun. We all know what is a noun. हमने हमेशा से पढ़ा है कि noun क्या होता है. A noun is the name of a person, place, animal or thing. एक noun किसी एक animal, place, human being और thing का name होता है. For example, plants, chair, air, trees, buildings, automobiles. These are all names to something. जब हम कुछ बोलते हैं, किसी का नेम बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में एकदम से वो इमेज आती है कि ओके, अ कार इज़ लाइक दिस एंड दिस इज़ व्हाट इट डज. सो दैट्स द नेम ऑफ अ एनिमल, प्लेस और थिंग. दैट इज़ कॉल्ड अ नाउन. Examples are boy, Ram, Bengaluru, rhinoceros, laptop, etc. Okay, the next part of speech that we have is pronoun. Pronoun. See children. Pronoun. Or I should write it like this. ये 2 वर्ड से बना है, प्रो एंड नाउन. प्रो का मतलब होता है जो नॉर्मल से थोड़ा बेटर होता है. ओके, जो और आगे होता है उसको हम प्रो कहते हैं. वी कहते हैं ना कि दिस चैप इज़ अ प्रो इन कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स में प्रो होने का मतलब होता है उसको कंप्यूटर्स अच्छे से आता है. ऑलराइट, सो प्रो मीन्स टू बी अहेड ऑफ समथिंग. सो प्रोनाउंस हियर मीन्स दैट इन प्लेस ऑफ नाउन्स, जब हम नाउन की जगह कुछ प्लेस करते हैं तो उसको प्रोनाउन कहा जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ नाउन कॉल्ड राम. And we are writing about Ram, so we again and again use the word Ram, like I'm saying right now. Okay, like Ram is a good boy, Ram goes to school, Ram eats food, Ram likes this, Ram likes that, Ram is a this thing, Ram is a that thing. So instead of using Ram again, we can use he. He likes to eat broccoli or whatever that is. Okay, so instead of Ram we use he. So he is a pronoun. Alright, the next part of speech here we have is adjective. Adjective, children, is a describing word. Remember this. Okay, whatever I'm underlining here, you have to remember these words. Adjective एक noun के बारे में कुछ describe करता है. For example, happy, sad, confident, one एक number है, one apple or one banana or whatever that is. Some people, few things, all this is adjective. Okay, verb क्या होता है? हमारा action word होता है. ये verb बहुत important होता है children. Always remember कि verb का मतलब होता है action word. Okay, next, it tells what a person or thing does. Does means करना. Okay, does means करना. What a person or thing is. verb हमें या तो बताता है कि एक noun ने कुछ किया या वो क्या है, या फिर या फिर वो उसके पास है, मतलब पोजेशन में है. ठीक है, verb सी. या तो वो हमें बताता है कि उसने क्या किया, दैट इज़ डज, या फिर वो क्या है, दैट इज़, या फिर उसके पास क्या है. इसका मतलब है, मतलब एग्जिस्टेंस है यहाँ पे. जैसे कि ही इज़ टायर्ड, सो टायर्ड हियर इज़ वर्ब. इसके बाद हम जो भी यूज़ करेंगे एक नाउन के लिए वो उसका वर्ब हो सकता है. ठीक है,
डोंट कंफ्यूज बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। एंड उसके पास क्या है, हैज़ का मीन्स टू हैव समथिंग। ऑलराइट, सो दीज आर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, डू, ईट, स्लीप, रन, एडवाइज, आस्क, प्रोड्यूस एसेट्रा। एडवर्ब, चिल्ड्रन हमने कल ये सब चीज़ें पढ़ा था, वी आर रिवाइजिंग इट एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। सो एडवर्ब जो होता है वो वर्ब में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी फ्रॉम द word itself, it says add verb, right? So it adds to the definition of verb. That means कि verb क्या होता है, action word होता है, कोई action कैसे हुआ है वो ये बताता है। adverbs बताते हैं कि कोई verb कैसे हुआ है। For example, happily, here, tomorrow, fast, now and then. Like give it to me now, give तो है तो हमारा verb हो गया give it to me now means right now, अभी, तो वो हमारा adverb हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ है preposition। preposition क्या होता है चिल्ड्रन? अगेन आई टोल्ड यू yesterday, it is made up of two words, pre and possession, TION। सो इसमें प्री है और पोजिशन है। सो पोजिशन विल ऑलवेज टेल यू द पोजिशन और द बीइंग ऑफ योर नाउन। ओके, लाइक इट्स रिटन हियर, यू कैन सी a preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence। यानी कि वो आपका प्रोनाउन जो है वो आपको बताएगा कि एक नाउन का क्या रिलेशनशिप है बाकी और वर्ड्स से जो सेंटेंसेस में आपने लिखे हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम सिटिंग ऑन द बेड। सो आई एम हो गया मेरा सब्जेक्ट यानी कि नाउन, सिटिंग ऑन जो है वो हो जाएगा हमारा प्रपोजिशन, क्योंकि वो हमें पोजीशन बता रहा है, वो आपको सेंटेंस में ये बता रहा है कि मेरी पोजीशन क्या है, वो बेड के ऊपर है, राइट? सो ये आपका प्रपोजिशन होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। कंजंक्शन चिल्ड्रन अगेन दो वर्ड से बना के मिला है, कंजंक्शन। इसमें कन है और जंक्शन है। जंक्शन मीन्स जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं उनको जंक्शन कहते हैं। जैसे कि ट्रेन में दो बोगीज़ जहाँ पे मिलती हैं उनको हम जंक्शन कहते हैं। वैसे ही कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को या फिर दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या दो वर्ड्स को जोड़ता है, वो जंक्शन होता है। एक कंजंक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो सेंटेंसेस के बीच में या फिर दो वर्ड्स के बीच में या फिर दो फ्रेजेस के बीच में या फिर दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में जंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, आई लाइक पेंटिंग एंड डांसिंग, आई एम इन क्लास 3 एंड माई रोल नंबर इज़ 1। ओके, एग्जाम्पल्स आर दीज। ऑलराइट, सो हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, एंड, और, बट, बिकॉज, इफ़, दो, until एंड एसेट्रा। लास्ट है इंटरजेक्शन सिंपल है चिल्ड्रन, ये आपको कोई भी सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, फियर, एंगर, सरप्राइज एसेट्रा। एग्जाम्पल्स हैं चिल्ड्रन, हुर्रे, हेलो, अलास, ब्रावो, ओह, वाओ एंड सो ऑन। नाउ चिल्ड्रन, वी हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज हियर। ये आपको कंप्लीट करना है अपने आप से। एंड चिल्ड्रन, आई हैव बीन सीइंग नोबडी सेंडिंग मी होमवर्क। जो होमवर्क नहीं सेंड करेगा बच्चे, PT1 में प्रॉब्लम होने वाला है फिर। सो यू पीपल बेटर गिव मी होमवर्क ऑन टाइम। ऑलराइट, सो ये वर्ड्स दिए हैं आपको, इनको यहाँ पे लिखना है। ये प्रोनाउन का है, ये नाउन का है, ये वर्ब का है। यहाँ पे स्पेस दिया है, आपको उसमें लिखना है कि कौन सा वर्ड किस हेडिंग के अंदर आना चाहिए। For example, verb. Let's find out two verbs from this. See, open. Open is a verb, so we will write open here. Then, angrily.
जहाँ पे हमको एडवर्ब लिखा होगा, सपोज ये एडवर्ब का है तो हम एंग्रीली यहाँ पे लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल ही स्टॉम्प्ड हिज फीट एंग्रीली. ओके, सो एंग्रीली विल बी आर एडवर्ब बिकॉज ये किसी ना किसी वर्ब का वर्ब के होने को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसीलिए एंग्रीली विल बी अ एडवर्ब. So this is how you have to do this exercise and send it to me as homework. And children, please send your homework on time, otherwise PT1 will be a difficult thing for you. Alright, so if any questions you can please ask me on WhatsApp group, and have a nice day. Thank you.